Welcome. The topic we are discussing now is ECG. So what we need to understand in the ECG is, सबसे पहले हम ECG का एक बहुत ही simple basic concept समझते हैं कि how the ECG is formed, what are the dimensions that is there in the ECG paper. Now, if you see a ECG paper, there are two types of boxes are there, the big boxes and the small boxes. If we say, for example, let's say अगर हम कुछ इस तरीके से इसको dimensions को divide करें, let's say for example this is a big box and here you can see this is the x-axis and this is the y-axis. So you can see there are 5 boxes are there in x-axis. 5 boxes are there in the x-axis. Each one small box is 1 mm. So total one big box is equal to 5 mm in the x-axis. So if I say one big box में x-axis में कितने small box आ रहे हैं, one big box is equal to 5 small box in the horizontal direction, means x-axis में. If you see the x-axis, x means ये केवल हम नाम रखने just for or better understanding कि अगर हम horizontally देख रहे हैं तो 5 small box are there in the x-axis. Now what is the use of knowing this is, for example, let's say here is the ECG wave, the P wave, the QRS and the T, and it is looking like this. If I ask you that in this ECG, what is the duration of the P wave? You can see that the P wave is from this point to this point. Means it is a covering area of 2 small boxes. It's a covering an area of 2 small boxes in the x-axis. We know that one small box is equal to 40 millisecond. So in this particular ECG, the P wave is of 80 millisecond. This is how we are going to use it. अब हम कभी भी millisecond में बात ही नहीं करेंगे. We will always talk in the number of small boxes, because we can convert that anytime into millisecond. We just have to multiply with 40, right? So x-axis हमें क्या दिखाता है? X-axis तो बताता है duration. X-axis is talking about the duration of the any wave or the interval, whereas the y-axis is talking about the voltage, कि उस पर्टिकुलर वेव का वोल्टेज कितना था. सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर में इस ECG कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखो पी वेव की हाइट आ रही इतनी, तो ये पी वेव का वोल्टेज है, दैट इज अराउंड 1.5. अगर आप QRS का वोल्टेज देखोगे तो यहाँ से हम बेस लाइन से कैलकुलेट करेंगे तो QRS का वोल्टेज आ रहा है इतना. सो यू कैन कैलकुलेट द वोल्टेज ऑन द हाइट. और एक्स एक्सिस में क्या देखते हैं? ड्यूरेशन. हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ड्यूरेशन. हमारे लिए ये जो है वाई एक्सिस वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो कहीं कहीं पे काम आता है. मेनली हमारे लिए जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स काम आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द एक्स एक्सिस, मींस द ड्यूरेशन. ओके, सो वन स्मॉल बॉक्स 40 मिलीसेकंड. नाउ कमिंग टू द ECG लीड्स. When it comes to ECG leads, we generally use the word 12 lead ECG. 12 lead ECG निकाला, 12 lead ECG निकाला. How we are going to do the 12 lead ECG? अगर आपने कभी ध्यान से सोचा और अगर आपने ECG की मशीन देखी या कभी आपने ECG किया होगा, आप देखिए we put 6 chest leads. 6 तो chest lead लगा देते हैं, 7th arm lead यहाँ पे लगाते हैं, 7th limb lead, 7th, 8th, 9th and 10th. तो टोटल हम 10 लीड्स प्लेस करते हैं. तो फिर हम उसको 12 लीड ECG क्यों बोलते हैं? हम उसको 12 लीड ECG इसलिए बोलते हैं कि वी आर हैविंग द 6 चेस्ट लीड्स. 6 तो चेस्ट लीड हो गई V1 से लेके V6 तक, एंड देन वी आर हैविंग द लिम्ब लीड्स. नाउ हाउ द लिम्ब लीड्स आर प्लेस्ड. एक लिम्ब लीड लगाते हैं हम. फॉर एग्जांपल दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड. So we are going to place a limb lead here on the right side of the arm, that is called as AVR. Then we are going to place one on the left upper limb, that is called as the AVL. Then we are going to place one here on the left foot, that is called as AVF. F stands for foot. And then we are going to place here on the right foot, that is just for the earthing purpose. So हमने जब ये ECG leads लगाए तो ये leads basically they are working like a electrode, और ये क्या कर रहे हैं? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे थे. अब अलग अलग जगह से अलग अलग रिकॉर्डिंग जा रही थी, तो मशीन के अंदर टोटल 6 रिकॉर्डिंग्स तो पहुंचती है चेस्ट लीड के थ्रू V1 से V6, और मशीन उनको प्रिंट कर देती है. there are 3 limb leads which are throwing the and recording the electrical activity and giving it to the machine, that is AVR, AVL, AVR.
Now the machine is designed in a way that the machine is going to print these leads. AVR, AVL और AVF को तो print करेगी ही करेगी machine. Now what the machine additionally will do is it is programmed in a way कि जो भी इनपुट AVR और AVL से आ रहा था उनको मर्ज कर दिया जाता है. AVR और AVL को मर्ज करके उसको भी प्रिंट कर देते हैं. And the merger of AVR and AVL, it will be printed and it will be called as the first standard lead. Then the merger of the AVR and AVF will be printed and that is called as the second standard lead. And in the same way, we are going to merge this and this is called as the third standard lead. So this is how we are going to print 3 more leads. So when it comes to the limb lead, we can divide the limb lead into 2 types, the unipolar and the bipolar. The unipolar means they are just taking the signal from one particular electrode such as AVR, AVL, AVF. These are the unipolar. Then we have the bipolar. Bipolar, how we are going to make? Say for example, AVR plus AVL के signal को merge करके जो print करेंगे, that is the first standard lead. Then we have the AVR plus AVF, that is called as the second standard lead. And in the same way, we are having the AVL plus AVF, that is called as the third standard lead. So these are the 3 standard leads which are going to be printed. So in total, 6 chest leads, 3 unipolar leads and 3 bipolar leads. And this is how we are going to get the 12 lead ECG. And this particular triangle is referred as the Ethovan's triangle. This is the Ethovan's triangle. Ethovan's triangle, आपने physio में भी पढ़ा होगा. So Ethovan's triangle, this is how it is made. Once we are done with this, now let's see how the ECGs are formed. ECG में अलग अलग waves बनते कैसे, तो उसको समझने के लिए हमें फिजियोलॉजी का एक बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे को वापस से हम उसको रिफ्रेश कर लेते हैं. आपने मसल फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जब भी मसल डीपोलराइज होती है, whenever the muscle is going to depolarize, means the muscle is going to activate and that is leading to the contraction of the muscle. So अगर मसल का डीपोलराइजेशन होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है. इसी तरीके से when the muscle repolarizes, जब भी मसल का repolarization होता है, that means the muscle is going to relaxation. So हमारे हार्ट में we are having the atrias and the ventricles. So if you see, there are total 4 events are happening. What are the 4 events in a cardiac cycle is happening? That सबसे पहले atria contract कर रहे हैं, then atria relax कर रहे हैं, and meanwhile the ventricles are contracting and relaxing. So atrial contraction, atrial relaxation, ventricular contraction, ventricular relaxation. So total 4 events. If I reframe them with the using these names, the depolarization and repolarization. So atrial contraction को बोलेंगे atrial depolarization. So there are 4 events: atrial depolarization, atrial repolarization, ventricular depolarization, ventricular repolarization. So total 4 events. So we should be getting these 4 electrical activity in the ECG. हमारे को ये 4 electrical activity दिखनी चाहिए. Now what is going to happen? For example, here you can see the conduction system of the heart. Now how the conduction system of the heart is working is, when the SA node fires, the impulse is going to depolarize the right atria. सबसे पहले right atria depolarization होता है, मतलब कि activation होता है, and then the left atria is going to depolarize. So the first event that you are going to notice is, we can say it is atrial depolarization. मतलब कि atria जो है वो active हो गए, अब वो contract करेंगे. Okay. और उसकी वजह से जो वेव आता है, that is referred as the P wave. This is going to be P wave. So this is how it is going to look like. This is the P wave. This P wave we can hypothetically divide into 2 half. हम 2 half में divide कर लेते हैं. जो first half है, it is denoting the depolarization of the right atria and the second is denoting the left atria. This is a hypothetical bifurcation we are doing it. Now this impulse will also go to the AV node, and AV node, which is also called as the gatekeeper of the heart. The reason it is called as the gatekeeper of the heart, because that is the only normal physiological entry point for the electrical impulse to enter in the ventricles. Atria से ventricle में जाने का, electrical impulse को ventricle में जाने का एक ही रास्ता है, that is AV node. It is like a single bridge connection between the atria and ventricle. So what happens? अब ध्यान से देखना आप, SA node ने फायर किया. The moment SA node fired, the right atria will depolarize, then the left atria will depolarize.
and this impulse will also go to the AV node and will knock at the gate of AV node that let me go inside. Now, AV node is a very rigid guardian of the conduction system of the heart. That is why it is called as the gatekeeper. It is a very slow processor. It's like a old security guard. What it will do is, whenever any impulse will come, will knock at the gate of AV node that please let me go inside. The AV node will say stop. Let me check whether the electrical impulse is required in the ventricle or not required. So now the AV node is going to see that whether it is going to required or not required. Meanwhile, what this electrical impulse will do is, the electrical impulse will wait here at the AV node. Means there is no electrical activities happening in at that particular time in the heart. So after the P wave, there is going to be a flat line. After the P wave, there is going to be a flat line because the electrical impulse is waiting at the gate of AV node. That AV node बोलेगा तब हम अंदर जा पाएंगे. So there is no electrical activities happening meanwhile. Now once the AV node will permit, now अब AV node ने बोल दिया ठीक है आप आगे जा सकते हो. Now the electrical impulse will come forward and in the ventricle they will start activating the ventricular muscles. Means the depolarization of the ventricular muscles. The first thing they are going to depolarize this electrical impulse, the first thing they are going to depolarize is the septum, the interventricular septum. So सबसे पहले ventricle के अंदर जो structure depolarize होता है that is septum. So there is going to be septal depolarization. और septal depolarization होने की वजह से एक छोटा सा wave आता है that is called as the Q wave. So there is a small deflection that you can see after a flat line that is called as the Q wave. Then the impulse is going to reach in the remaining part of the ventricle and the remaining part of the ventricle is going to depolarize. अब बाकी का ventricle depolarize होगा. So सबसे पहले ventricle में कौन सा structure depolarize हुआ? Septum. उसकी वजह से Q wave. Then the remaining part will depolarize with the help of the Purkinje fiber. So I can say now remaining ventricular depolarization and the wave that we are going to get is the RS wave. RS wave. So now after the Q wave, we are going to get the RS wave, something like this. Here is the R wave and the S wave. Now, because Q is for the septal depolarization and the RS is the remaining part of the ventricular depolarization, so हम इस QRS को एक साथ ही club करके we can say this is QRS complex. And what it is denoting is, it is denoting the ventricular depolarization. Ventricular depolarization. The next wave that we are going to get, there is going to be a small flat line. After the depolarization, there is no electrical activity for few milliseconds, and then we are going to get the T wave. What is the meaning of T wave? The T wave is the ventricular repolarization. Ventricular repolarization. So you can see that when I started this entire discussion, तब मैंने आपको बोला था कि total there should be 4 events. What were the 4 events? Atrial depolarization, atrial repolarization, ventricular depolarization, ventricular repolarization. ये 4 event होने थे. लेकिन ECG में we can only see 3 events: atrial depolarization, ventricular depolarization, and ventricular repolarization. We can see only 3 events. There is one event is missing, and which is that atrial repolarization. वो हमें नहीं दिखता. देखिए, here you can see the atrial depolarization, here you can see the ventricular depolarization, and here is the ventricular repolarization. There is one event is missing, that is atrial repolarization. वो कहाँ पे हो रहा है? That is actually happening here behind the QRS, not visible. Atrial repolarization हमको दिखता ही नहीं, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतनी कम होती है वो QRS के पीछे छिप जाता है, इसलिए हमें नहीं दिखता. तो ECG के अंदर हमारे को 3 इवेंट देखने को मिलते हैं: एट्रियल डी, ventricular D, and ventricular re. These are the only 3 events are visible. If you see the ECG, this is how the normal ECG complex is looking like: the P wave, the QRS, and the T wave. Now there are 2 intervals from the beginning of the P wave to the beginning of the QRS. This is referred as the PR interval. It's called as the PR interval. So in some books, it is written as PQ interval also. From the beginning of P to the beginning of QRS, PR interval. From the beginning of Q to the completion of T, this is called as QT interval.
तो ईसीजी के अंदर दो इंटरवल्स होते हैं, PQ इंटरवल एंड द QT इंटरवल. देयर आर टू segments are also there. What is the meaning of segment? Segment का मतलब होता है any flat line between the two waves is called as the segment. So here you can see there is one segment between the P wave and the Q wave. There is a flat line. This is called as the PR segment. And there is a flat line between the S wave and T wave. This is called as ST segment. So segment का मतलब तो होता है दो waves के बीच की flat line को हम बोलते हैं segment. And interval which is a duration which is having a one wave also in that. So here you can see the PR interval from the beginning of the P to the beginning of QRS is called as PR, and from the beginning of Q to the completion of T is called as QT interval. अब हमारे को इनकी ड्यूरेशन याद करनी है कि नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है. देखिए, हाउ टू रिमेंबर द ड्यूरेशन? इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. वी विल जस्ट रिमेंबर वन न्यूमोनिक. व्हाट इज द न्यूमोनिक दैट वी आर गोइंग टू यूज that will give you a rough idea about the normal duration of the each wave? The mnemonic is QQR PPR. QQR PPR. QQR PPR. This is relatively very easy, not difficult, right? QQR PPR. What is the meaning of this? Q wave, it is roughly equal to one small box. और आपको तो पता है ना, वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 40 मिली सेकेंड. आप कभी भी 40 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो इसकी ड्यूरेशन. तो QR, actually it is QRS. So it is 2 to 2.5 small box. 2 to 2.5 small box. The duration of QRS 2 to 2.5 small box. So QQR PPR. The P wave duration is 3 small box. And the PR. Okay, PR तो क्या है? PR तो इंटरवल है. PR तो इंटरवल है. Because it is coming at the fourth place, so the PR interval will be 4 small box. Now, because it is a interval, क्योंकि ये इंटरवल है, PR तो इंटरवल है, तो इंटरवल के लिए तो हम एक रेंज यूज करेंगे. तो इसकी रेंज हो जाएगी 3 to 5. हमने तो मीन वैल्यू याद रख ली, बाकी तो जो ड्यूरेशन है वो 3 to 5 के बीच में होना चाहिए. सो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं इस न्यूमोनिक को हम. देखिए कैसे. QQR PPR. Q वेव कितना बड़ा होना चाहिए? वन स्मॉल बॉक्स से छोटा होना चाहिए, वन स्मॉल बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए. QQR PPR. QRS 2 to 2.5 small box. P wave 3 small box. And PR interval, it is should be a range 3 to 5. The mean value is going to be 4. Let's add the T and the QT interval also in this mnemonic. T wave and the QT interval. So the mnemonic was 1, 2, 3, 4, and here it comes the 5. And here it comes the 10. तो हम ऐसे याद रखेंगे QQR PPR TQT 1 2 3 4 5 10. QQR PPR TQT. QT क्या है? QT तो इंटरवल है और इंटरवल की तो रेंज होती है. So it will be 9 to 11. So everything we are going to remember in the number of small box. Anytime we can convert them into the milliseconds by multiplying into 40. So this is how we have to remember QQR PPR TQT 1 2 3 4 5 10, right? So here you can see. Let's use the mnemonic. अगर मैं आपसे पूछूं कि Q wave का जो ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, the Q wave duration should be less than one small box. The Q wave duration should be less than one small box. मतलब कि यहां से लेके यहां तक it should be less than one small box, क्योंकि mnemonic is QQR PPR. The second thing was the QRS. The QRS duration should be 2 to 2.5 small box. Then the P wave should be less than 3 small box. The PR interval should be 3 to 5 small box. So now it is very easy for us to remember. आप केवल निमोनिक याद रखो, बाकी तो बहुत आसान है. QQR PPR 1 2 3 4 5 10. Now coming to T wave. अब देखो, बाकी सब चीजों का तो हम ड्यूरेशन देखते हैं, लेकिन टी वेव का हमारे लिए हाइट इंपॉर्टेंट है. द ओनली वेव वेयर द हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस रादर देन द ड्यूरेशन इज द टी वेव. टी वेव का हम हाइट देखते हैं, एंड इट शुड बी मोर देन 5 स्मॉल बॉक्स. Then comes the QT interval. It should be 9 to 11 small box. So now we have understood that what should be the normal duration of each wave. इसमें हमारे लिए टी वेव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड व्हाट आर द रिमेनिंग वंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस इज द QQR PPR टी तो नहीं इंपॉर्टेंट है, QT इंपॉर्टेंट है. सो 1 2 3 4 5 10. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट. और ये जितने भी मैंने आपको ड्यूरेशन बताया, दीज आर एप्लीकेबल
फॉर द सेकंड स्टैंडर्ड लीड, बिकॉज ईसीजी में सबसे इंपॉर्टेंट लीड हमारे लिए होती है सेकंड स्टैंडर्ड लीड. Second standard. So these values are applicable mainly on the second standard lead. Now coming to the conduction system of the heart. यहाँ पे हम दो चीजें और समझ लेते हैं. देखिए, what happens is कि जैसे ही ऐसे नोड ने फायर किया, the moment ऐसे नोड fired, it is going to depolarize the right atria, it is going to depolarize the left atria, and the impulse will also go towards the AV node and will knock at the gate of AV node. And AV node will take some time to pass this signal, and the signal will reach all the way, then it is going to reach all the way to the interventricular septum. अब आपको ये पता है कि what happens is when this impulse is going to knock here and this impulse will pass and will reach here, meanwhile the AV node is a fast processor or a slow processor? It's a very slow processor, so it takes time. इसीलिए इंपल्स को इस पॉइंट पे आके वेट करना पड़ता है, थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ता है, और उसके बाद हमारे को एक फ्लैट लाइन देखने को मिलती है. सो अगर मैं आपको ईसीजी में ड्रॉ करके बताता हूं, फॉर एग्जांपल हियर इज द पी वेव, द क्यूआरएस एंड द टी वेव. आप देखिए जैसे ही पी वेव चालू हुआ, मतलब कि यहां से ऐसे नोड ने फायर किया, द मोमेंट ऐसे नोड फायर, पी वेव चालू हो गया बनना, इंपल्स जो है यहां से होते हुए यहां पे आई और यहां पे जाके वेट करेगी, और फिर जब इसको सिग्नल मिल जाएगा कि आप आगे जा सकते हो, तब यहां पहुंचेगी, एंड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम डीपोलराइजेशन विल स्टार्ट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज द कंडक्शन ऑफ द इंपल्स फ्रॉम द ऐसे नोड से चालू हुआ टिल द कंप्लीशन ऑफ एवी नोड, मतलब कि यहां से लेके इसने यहां पे नॉक किया, फिर इसको क्रॉस किया और यहां तक आ गए. मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द पी वेव, अब सेप्टम का डीपोलराइजेशन होने ही वाला था फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्यू वेव. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंटरवल? यस, दिस इज कॉल्ड एज द पीआर इंटरवल. दिस कॉल्ड एज द पीआर इंटरवल. फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एसे नोड, जैसे एसे नोड ने फायर किया तो पी वेव बना. मीनवाइल ये इंपल्स ट्रेवल भी कर रहा था, और ये यहाँ पे आ गया, फिर इसने नॉक किया, फिर यहां से क्रॉस किया, फिर यहाँ पे आया, और फिर क्यू वेव आने ही वाला था. तो दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज द पीआर इंटरवल. नाउ वंस द इंपल्स विल रीच हियर, अब यहाँ पे इंपल्स पहुंच गया. नाउ इट इज गोइंग टू डीपोलराइज द सेप्टम. सेप्टम में सबसे पहले डीपोलराइजेशन होगा बंडल ऑफ हिस का, देन द लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड द राइट बंडल ब्रांच. सॉरी, उल्टा लिख दिया. सो देन is the right bundle branch and the left bundle branch, they are going to depolarize, and the impulse will travel forward and they are going to depolarize the interventricular septum. Septum depolarize होगा, और उसके बाद में क्या depolarization होगा? Remaining part. And who is going to do that? The Purkinje fibers. Who are going to do that? Purkinje fibers. So now there is one more interval. What is that? is कि impulse जब bundle of his तक पहुंचता है, मतलब कि यहां से चालू होता है ट्रेवल करना, और इन बंडल ब्रांचेस को कंप्लीट करता है इस पॉइंट तक, उसके बाद तो पुरकिंजे फाइबर्स चालू हो जाएंगे. तो बंडल ऑफ हिस से लेके लेफ्ट बंडल और राइट बंडल के कंप्लीट होने तक ये वाला जो ड्यूरेशन होता है, द कंडक्शन थ्रू द बंडल ऑफ हिस थ्रू द बंडल ब्रांचेस, बंडल ऑफ हिस से लेके पूरी बंडल ब्रांचेस तक, ये जो पूरा ट्रेवल हुआ है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज HV इंटरवल. It's called as HV interval. This is a electrophysiological term. So there is one more interval that we have understood. It's called as HV interval. HV interval क्या हो रहा है? From the bundle of his से लेके impulse जो है left bundle right bundle में travel कर रहा है. The moment it will start entering in the Purkinje fiber, उससे पहले तक का जो duration है उसको हम क्या बोलते हैं? HV interval. This was asked once in the FMG exam. What is HV interval? Is the time that is taken from the impulse to travel from the bundle of his to the entire bundle branches before entering the Purkinje fibers. That is called as HV interval. So these are the terms to be remembered when it comes to the conduction system of the heart, right? Now, coming to the first concept, that is calculation of the heart rate. How we are going to calculate the heart rate is, see, there are two methods. There are two methods that will depend is, सबसे पहले जब भी आपको हार्ट रेट कैलकुलेट करनी है, आप देखो कि रिदम जो है वो रेगुलर है या इरेगुलर है. रिदम इज रेगुलर और इरेगुलर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर और इरेगुलर? आपको क्या करना है? यू जस्ट टेक द सेकंड लीड,
आपको सेकंड लीड देखना है। सेकंड लीड ईसीजी के पेपर में 2 बार प्रिंट होता है। एक तो छोटा सा सेकंड लीड यहाँ पे प्रिंट होता है, दिस इज अ स्मॉल सेकंड लीड, एंड एट द बॉटम यू कैन सी अ लॉन्ग सेकंड लीड, इज अ लॉन्ग सेकंड लीड till this point, right? So what you need to see is you just focus on the long second lead and you try to find out the R waves. बहुत easy है R wave को तो find करना. Here are the R waves and I'm just going to look at some of them. Now what I will try to do is I will try to see that what is the duration between the R wave. The duration between the R wave, is it same or is it different? आप देखिए R wave के बीच का जो duration है वो change हो रहा है या same है, तो आप देखिए ये same है. In this case it is same, so it's a regular rhythm. अगर regular rhythm है, how we are going to calculate the heart rate is equal to 300 divided by the RR interval. You need to calculate the RR interval in the number of big boxes. आप ये कैलकुलेट कर लो कि 2 R के बीच में कितने बिग बॉक्स आ रहे हैं. इस केस में 1, 2 and 3. इस केस में 3 आ रहे हैं. सो 300 डिवाइडेड बाई 3 कम्स आउट टू बी 100. इस पेशेंट की हार्ट रेट 100 है. अगर आपको बिग बॉक्स कैलकुलेट नहीं करने and you want to make your life more difficult, then you can calculate the small boxes. Then the formula is 1500 divided by the RR interval in the number of small boxes. You can calculate the small box and based on that you can calculate the heart rate. So there are two methods. दो मेथड हो गए हार्ट रेट कैलकुलेट करने के. 300 divided by the RR interval in the number of big box. If not, small box से कैलकुलेट करना है तो 1500 से डिवाइड कर लो. क्योंकि इस केस में आप देखो 2 R वेव के बीच में there are 3 big box और एक बिग बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्स आते हैं, एक्स एक्सिस में 5. तो टोटल कितना हो गया 15. सो 1500 डिवाइडेड बाय 15 कम्स आउट टू बी 100. सो इफ यू यूज दिस फॉर्मूला और द फर्स्ट वन, विच एवर इज इजी फॉर यू, you can use that. But this is only applicable if the heart rate, if the rhythm of the heart is regular. It's not applicable if the rhythm is irregular. अगर irregular rhythm हुआ तो फिर कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए irregular rhythm कैसे हो गया. If you look at the R waves, यहाँ पे देखो R wave के बीच का ड्यूरेशन देखो चेंज हो रहा है, कभी कम है कभी ज्यादा है. आई एम जस्ट मेकिंग अ लाइन टू मेक यू अंडरस्टैंड इट हियर. यहाँ से यहाँ तक देखो आप R wave के 2 R wave के बीच का ड्यूरेशन. Here you see the duration between the R wave. Here you see the duration between the R wave. It is changing. It is irregular rhythm. If it is irregular, we can't use that form. 300 divided by the RR interval because the RR interval is changing. हम कौन सा RR interval यूज करें भाई, ये वाला करें, ये वाला करें, ये वाला करें. हर से करेंगे तो हार्ट रेट अलग अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा. कोई उससे कैलकुलेट कर लेगा तो अलग आएगा, इससे करेगा तो अलग आएगा. तो अगर RR इंटरवल चेंज हो रहा है ना, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम एक अलग फॉर्मूला यूज करते हैं. पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा वो डिराइव कैसे हुआ है. फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है. यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आर वेव, इन 30 बिग बॉक्सेस. 30 बिग बॉक्स में कितने आर वेव आ रहे हैं, मतलब कि यहां से लेके यहां तक. फॉर एग्जाम्पल ये यहां से लेके यहां तक 30 बिग बॉक्स है. मैंने उतना ईसीजी आपके लिए कट करके रखा था, ये 30 बिग बॉक्स हो जाए. सो हियर इज द फर्स्ट बिग बॉक्स, द सेकंड, द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया तो टोटल 30 बिग बॉक्स की ईसीजी थी. सो इट्स ईसीजी ऑफ 30 बिग बॉक्स. नाउ वंस यू हैव द ईसीजी ऑफ 30 बिग बॉक्स, उसके अंदर अब आप कैलकुलेट करो. इन दैट यू कैलकुलेट दैट हाउ मेनी आर वेव्स आर देयर. यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट आर वेव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 बिग बॉक्स में 10 आर वेव्स आ रहे हैं. Whatever the value is coming, multiply it with 10. And that way you will get the heart rate. यहाँ पे देखिए what is going to happen is, here you can see in this example there are 10 R waves. So 10 into 10, that is the heart rate of this patient, that is 100 per minute. So this is how you are going to calculate the heart rate if the rhythm is irregular. Rhythm irregular है तो आप सबसे पहले एक ECG लो जिसके अंदर that is a ECG of 30 big boxes. That much long ECG has to be there. 30 big box का ECG हो, उसके अंदर कैलकुलेट करो कि how many times the R wave has came and accordingly you can calculate. How we have did is, ये कैलकुलेशन आया कहां से, ये नंबर 30 बिग बॉक्स का कहां से है, मैं वो समझाता हूं अभी आपको. हमारे को एग्जाम में तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है कि इररेगुलर में ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला कहां से आया. ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आया. हमें पता है दैट 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 40 मिलीसेकंड. 1 स्मॉल बॉक्स इज 40 मिलीसेकंड. और अगर मैं एक बिग बॉक्स बनाता हूं,
Here is a big box. You can see there are 5 small boxes are there. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 small boxes. So अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक बिग बॉक्स को अगर आप एक्स एक्सिस में देखते हो तो उसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्स आते हैं. सो आई कैन से वन बिग बॉक्स in the x-axis, if we see the duration, it is going to be 5 into 40, comes out to be 200 millisecond. 200 millisecond. अगर 200 millisecond is equal to one big box, 200 millisecond is equal to one big box, so 1000 millisecond will equal to how much big box? 5 big box. 1000 millisecond is equal to 5 big box. 1000 millisecond का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? 1 second is equal to 5 big box. 1000 millisecond is basically 1 second. 1000 millisecond is 1 second. So 5 big box की जो ECG होती है वो basically 1 second की ECG होती है. अगर मैं 30 big box की ECG चेक करता हूं तो 30 big box की ECG is equal to a duration of 6 seconds. Is that equal to 6 seconds? So basically 30 big boxes are equal to 6 seconds. 30 big boxes are equal to 6 seconds. Now once we know this, क्योंकि हमें पता है कि 30 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 6 सेकेंड, तो हमने क्या किया, इस पेशेंट को हमने ये चेक कर लिया कि 6 सेकेंड में इसका हार्ट कितनी बार बीट हुआ. जितनी बार आर वेव हुई उतनी बार बीट हुआ. तो 6 सेकेंड में इसका हार्ट, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखो इसका हार्ट टोटल 10 टाइम्स बीट हुआ. 6 सेकेंड में 10 टाइम्स बीट हुआ. तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा, हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया. So 10 into 10 comes out to be 100. This is how we have calculated. We have derived this formula. तो आपको एग्जाम के लिए तो केवल ये फॉर्मूला याद रखना है. आप तो ये देख लो कि 30 सेकंड की स्ट्रिप में कितनी बार आर वेव आया, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो. ये फॉर्मूला कहां से डिराइव किया है, तो ये इस तरीके की कैलकुलेशन करके इसको डिराइव किया गया, विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द एग्जाम. हमें केवल इस फॉर्मूला से हमारा आंसर मिल जाएगा. राइट. द सेकंड क्वेश्चन दे आस्क, एक तो ये बोलते हैं कि वो ईसीजी देते हैं और हार्ट रेट पूछते हैं. अब आपको पता लग गया कि हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है. अगर रेगुलर रिदम है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 300 डिवाइडेड बाय द आरआर इंटरवल इन द नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस. अगर इररेगुलर है तो आर वेव कैलकुलेट कर लो कि 30 बिग बॉक्स की ईसीजी में कितने आर वेव आए, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो. द सेकंड थिंग दे आस्क इज द एक्सिस. ईसीजी का एक्सिस क्या होता है. तो दे विल गिव यू द ईसीजी एंड दे विल आस्क यू द एक्सिस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस. पहले तो ये समझते हैं कि एक्सिस का मीनिंग क्या है. देखिए, हमारा जो हार्ट है वो इस तरीके से उसको रख रखा है, डायफ्राम के ऊपर पड़ा हुआ है, और हार्ट जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड है. हार्ट इज स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड. अगर दैट इज द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द हार्ट, द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द हार्ट. बट इफ समवन इज हैविंग लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई तो हार्ट जो है लेफ्ट साइड में ज्यादा हो गया. अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे लेफ्ट एक्सिस में इसका डेविएशन है हार्ट का. अगर किसी की राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाए तो हार्ट इज मोर ऑन द राइट साइड, is the right axis deviation. So basically we try to see that how the electric impulse is flowing in the heart. Means what? For example, let's draw a person. Here is the chest and somewhere here is the midline. Somewhere here is the midline. Normally the heart is located somewhat like this. कुछ इस तरीके से लोकेट होता है, राइट. दिस इज अ नॉर्मल एक्सिस. तो नॉर्मली हमारे हार्ट में जो करंट का फ्लो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, समथिंग लाइक दिस. दिस इज द नॉर्मल एक्सिस, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. बट अगर किसी को लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई, इफ देयर इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, then the electrical impulse will flow towards like this, and that is called as left axis deviation. In the same way, अगर किसी को राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाए, then the electrical impulse will flow like this. That is called as the right axis deviation. And there is a hypothetical axis that is called as the extreme axis. अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाए, that is extreme axis deviation. So basically there are 4 axes that can be possible in the heart. Again explaining, see here, this is the normal axis. If the heart is more on the left side, left axis. If the heart is more on the right side, right axis. And if the heart is like this, it's extreme axis. So we can have the normal axis, right axis, left axis and extreme axis. अब हम ECG देख के ये पता लगा लेते हैं कि पेशेंट का एक्सिस क्या है ECG में. So how we are going to do that? We have to see 2 leads.
देखिए इसको एक्सिस को पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट वन ऑफ द इजी वे इज टू सी एट टू लीड्स. लुक एट फर्स्ट एंड एवीएफ. आप केवल फर्स्ट और एवीएफ को देखो. व्हाट यू हैव टू सी इज लुक एट द कॉम्प्लेक्सेस इन द फर्स्ट लीड. मान लीजिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है और एवीएफ में कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लुकिंग लाइक दिस. फर्स्ट इन एवीएफ. आई वांट यू टू फोकस ऑन द क्यूआरएस. केवल क्यूआरएस को देखो फर्स्ट में, और उसमें भी आप आर वेव और एस वेव को देखो और कंपेयर करो कि किसकी वोल्टेज ज्यादा है, आर वेव की या एस वेव की. वोल्टेज कैसे देखते हैं? हाइट से. सो आप देखो यहाँ पे आर वेव इट्स स्लाइटली बिगर देन द एस वेव. तो क्योंकि आर वेव इज अ पॉजिटिव वेव, ऊपर की तरफ होता है, एस वेव नेगेटिव होता है, नीचे की तरफ होता है. तो मान लेते हैं हमारे पास में एक पहला जो आदमी आ रहा था, उसकी फर्स्ट लीड में हमने क्यूआरएस को देखा, और क्योंकि आर वेव बड़ा दिख रहा था तो मैंने ऊपर की तरफ एरो बना दिया, जस्ट फॉर और सिंप्लिसिटी, क्योंकि आर वेव बड़ा है. तो क्यूआरएस में मेजर डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ था तो मैंने ऊपर की तरफ एरो बना दिया. हियर ऑल्सो इफ यू डू द सेम एक्सरसाइज इन द एवीएफ इन द सेम पेशेंट, आप उसमें एवीएफ में भी आर और एस में देखो कि मेजर डिफ्लेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव. पॉजिटिव था तो आई हैव मेड अ एरो ऑन द अपर साइड. इफ फर्स्ट और एवीएफ में दोनों में मेजर डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, इट इज नॉर्मल एक्सिस. अगर ऐसा हो जाता, मान लीजिए दूसरा पेशेंट आया, उसकी ईसीजी देख रहे थे, उसकी ईसीजी कुछ इस तरीके से दिख रही थी. फर्स्ट लीड में तो कॉम्प्लेक्स ऐसा दिख रहा था और एवीएफ में हमें ऐसा दिख रहा था, समथिंग लाइक दिस. सो हियर यू कैन सी दैट अगर आप आर और एस को कंपेयर करोगे तो आर वेव बड़ा था, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन था. हियर यू कैन सी द डिफ्लेक्शन इज मेनली टुवर्ड्स द लोअर साइड. So both the arrows are leaving one another. If you see that in the first end AVF, the arrows are leaving one another. L for leaving, it is left axis deviation. Left axis deviation, right? इसी तरीके से the third person, उसका ECG first lead में कुछ इस तरीके से दिख रहा था और AVF में कुछ ऐसा दिख रहा था. Now what is going to happen is, here you see the major deflection is towards the lower side and here the major deflection is towards the upper side. Both the arrows are reaching one another. If they are reaching one another, it is right axis deviation. They are reaching one another, so it is right axis deviation. अगर कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको दिखता फर्स्ट और एवीएफ में, here you can see the major deflection is towards the lower side and here also lower side. दोनों नीचे की तरफ जा रहा है, extreme axis. So it's a quite simple exercise for us. फर्स्ट और एवीएफ को देखना है, दोनों एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मेजर डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ है, नॉर्मल एक्सिस. इफ वन इज गोइंग अप, अनदर इज गोइंग डाउन, लीविंग वन अनदर, लेफ्ट. इफ दे आर रीचिंग वन अनदर, राइट. इफ बोथ आर गोइंग डाउन, एक्सट्रीम. दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सिस. दिस इज वन ऑफ द इजी वे टू फाइंड आउट द एक्सिस. इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, बट मोर और लेस हमारे सारे एमसीक्यू इससे सॉल्व हो जाते हैं. अब देखिए हम इसको करके कोशिश करते हैं. अब हमें क्या होता है कि एग्जाम में ये तो याद रह जाता है, एल फॉर लीविंग से लेफ्ट एक्सिस है, रीचिंग से राइट एक्सिस है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि देखना कहां था, देखना कौन सी लीड्स में, फर्स्ट एंड एवीएफ. तो ये याद रखना ज्यादा जरूरी है, कहां पे देखना है, फर्स्ट एंड एवीएफ में. एक एक्सरसाइज करते हैं. मान लीजिए मैं आपको एक ईसीजी देता हूं, हियर इज द ईसीजी, एंड मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू सी द नेम्स ऑफ द लीड. क्योंकि इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. अगर वो पूछ रहे हैं कि इस ईसीजी में एक्सिस बताओ, तो हमें सबसे पहले कौन से दो लीड को पकड़ लेना है, फर्स्ट एंड एवीएफ. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज वेयर इज द मेजर डिफ्लेक्शन. फर्स्ट में देखा तो मेजर डिफ्लेक्शन तो ऊपर की तरफ था, तो मैंने एरो बना दिया कुछ इस तरीके से. एवीएफ में जो मेजर डिफ्लेक्शन आ रहा था वो नीचे की तरफ आ रहा था. सो यू कैन सी बोथ आर लीविंग वन अनदर. लीविंग हो गया तो कौन सा एक्सिस हो गया, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. सो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द axis in the ECG. They can give the ECG and they can ask the axis. Look at the first end AVF and that will tell you the answer. Leaving one another, left. Reaching one another, right. Now, if there is right ventricle hypertrophy, there is going to be right axis deviation. If there is left ventricle hypertrophy, there is left axis deviation. अगर right ventricle बड़ा हो गया तो obviously right axis deviation होगा. Left ventricle hypertrophy तो left axis deviation होगा. जैसे कि, for example, if someone is having uncontrolled hypertension, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कार्डियोलॉजी के, अगर किसी को हाइपरटेंशन होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ता है ब्लड को पुश करने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, हाइपरटेंशन का मतलब रेजिस्टेंस है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत काम करता है तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है. सो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन विल लीड टू लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड इफ देयर इज लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी द पेशेंट विल हैव लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. इसी तरीके से
एओर्टिक स्टेनोसिस, सी लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच का जो वाल्व होता है दैट इज एओर्टिक वाल्व. अगर ये एओर्टिक वाल्व अच्छे से नहीं खुल रहा है दैट इज कॉल्ड एज एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस. अगर ऐसा हो जाता है द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू पुश द ब्लड, बिकॉज ब्लड जा ही नहीं रहा है ना यार, जा ही नहीं रहा है तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा और उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी. So aortic stenosis will have the left ventricle hypertrophy and that will lead to left axis deviation. Now coming to the pulmonary artery hypertension. Pulmonary artery hypertension. What is pulmonary artery hypertension is, for example, if we again draw the heart, here is the representation of the four chambers of the heart. Here is the right ventricle, the left ventricle, the artery which is coming out from the right ventricle, it is the pulmonary artery. If there is कॉन्स्ट्रिक्शन इन द पल्मोनरी आर्टरी, अगर पल्मोनरी आर्टरी में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन. इस केस में राइट वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ेगा ब्लड को पुश करने के लिए, क्योंकि आगे जाने का रास्ता जो है दैट इज नैरो. राइट वेंट्रिकल हैज टू वर्क वेरी हार्ड और राइट वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ेगा तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी. सो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन विल लीड टू राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, दैट विल लीड टू राइट एक्सिस डेविएशन. In the same way, you know that the pulmonary artery is ultimately is going to push the blood in the lungs. Pulmonary artery basically blood को कहाँ लेके जा रही है? लंग्स में लेके जा रही है. अगर किसी के लंग्स बहुत कड़क हो जाए, लंग्स खराब हो जाए, जैसे कि सीओपीडी में, the lungs becomes very hard, very stiff. अगेन किसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा? राइट वेंट्रिकल का वर्कलोड बढ़ गया ना यार. राइट वेंट्रिकल ही जो था जो लंग्स के अंदर ब्लड को पुश कर रहा था. अगर किसी को सीओपीडी है तो राइट वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ेगा, ब्लड ही नहीं जा रहा लंग्स के अंदर तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी. सो क्रॉनिक लंग पैथोलॉजी विल हैव द राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, दैट विल अगेन लीड टू राइट एक्सिस डेविएशन. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में भी राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है, तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी तो राइट एक्सिस डेविएशन होगा. सो यू कैन सी दैट द वेरियस कंडीशन, अगर लेफ्ट हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, इट विल लीड टू लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है तो राइट एक्सिस डेविएशन होगा. एक और तरीका होता है एक्सिस निकालने का, कुछ इस तरीके का प्री डिफाइंड सर्कल है और वो क्या करते हैं, वो आपको एक एरो लगा के दे देते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि इसका एक्सिस बताओ. तो अगर वो एरो लगा के देते हैं मान लीजिए इस जगह पे और वो आपसे पूछ लेते हैं इस पेशेंट का एक्सिस बताओ, अगर एरो ग्रीन कलर के एरिया में लगा रखा है, मतलब कि यहां से यहां तक में लगा रखा है, दिस इज सजेस्टिव ऑफ नॉर्मल एक्सिस, द नॉर्मल एक्सिस ऑफ द हार्ट. इफ द एरो इज देयर इन दिस ब्लू कलर एरिया, इट इज सजेस्टिव ऑफ द राइट एक्सिस डेविएशन. If the arrow is in this red color area, is the left axis deviation. The arrow is in this white color area, this is the extreme axis. Extreme axis. So they can give you this predefined circle. इसको कैसे याद रखना है? हम ऐसे याद रख लेते हैं 6 to 9 PM. 6 PM से लेके 9 PM का जो टाइम होता है, 6 बजे से लेके 9 बजे तक टाइम, दिस इज द राइट टाइम. दिस इज द राइट टाइम. बिकॉज क्या होता है एग्जाम में, नॉर्मल तो हमें याद रह जाता है कि नॉर्मल तो बीच में था, बट हम ये भूल जाते हैं कि राइट किधर था, राइट इधर नीचे वाला था या ऊपर वाले था. So 6 to 9 is the right time. The before that normal, उससे पहले left, right? So this is how we can figure out the axis of the ECG. Right? Thank you. Welcome. In this topic, we are going to discuss about the ECG abnormalities of the P wave, PR interval, and the Q wave. So, starting with the first one, that is P wave. We have discussed in the previous session that the P wave is because of the atrial depolarization. मतलब कि एट्रिया जब एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से P wave आता है. P wave को hypothetically we can divide into two halves. फर्स्ट, बिकॉज जैसे ऐसे नोट फायर करता है तो फर्स्ट राइट एट्रिया डीपोलराइज होता है, देन लेफ्ट एट्रिया डीपोलराइज होता है. सो हाइपोथेटिकली वी कैन डिवाइड द पी वेव इनटू टू हाफ. द फर्स्ट हाफ इज रिलेटेड टू द राइट एट्रिया एंड सेकंड हाफ इज रिलेटेड टू द लेफ्ट एट्रिया. नाउ what are the deformities that can be there in the P wave? For example, let's say there is a patient in whom what is happening is that this mitral valve, which is a connection between the left atria and left ventricle, is not opening nicely. If the mitral valve is not opening nicely, this is called as mitral valve stenosis. Now, if there is a mitral valve stenosis, when the blood is going to flow from right atria to right ventricle, there is no problem. But from the left atria to left ventricle, the blood will not come easily because the mitral valve is not opening nicely. In that case, the left atria has to work very hard to push the blood.
और क्योंकि लेफ्ट एट्रिया को बहुत काम करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड, अगर लेफ्ट एट्रिया बहुत काम करेगा तो लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी. So what is happening here is the middle valve is not opening nicely, so the left atria has to work very hard to push the blood. And क्योंकि ये मसल है तो जब भी ज्यादा काम करेगी तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी. So in this case, how the P wave is going to look like? See, the first half of the P wave is because of the right atria, और right atria तो बिल्कुल ठीक है, तो P wave के first half में तो change नहीं आएगा. Then what is going to happen is there is going to be a notch, and then there is going to be a second half, something like this. So ये जो notched P wave आ रहा है, there is a notch that you can see in the P wave. This particular P wave is referred as the P mid-rail, and this P mid-rail is suggestive of left atrial hypertrophy. अब लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी किसी भी वजह से हो, वन ऑफ द कॉमन रीजन इज मिटल स्टेनोसिस, तो मैंने मिटल स्टेनोसिस का एग्जांपल लिया. बट अगर लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होगी तो पी वेव में नॉच आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज पी मिड-रेल. इन द सेम वे व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द अपोजिट साइड. मान लीजिए कि ट्राइकस्पिड वाल्व में स्टेनोसिस हो गया. इफ देयर इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व स्टेनोसिस, देन व्हेन द ब्लड इज गोइंग टू फ्लो, मिट्रल वाल्व के थ्रू तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, बट राइट एट्रिया को बहुत काम करना पड़ेगा ब्लड को पुश करने के लिए. अगर राइट एट्रिया को बहुत काम करना पड़ेगा तो ओवर अ पीरियड देयर इज राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी विल बी देयर. और अगर राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, द पी वेव इज गोइंग टू बी वेरी टॉल, समथिंग लाइक दिस. So we are going to have a tall P wave, and this tall P wave is referred as P pulmonale. This P pulmonale is basically a feature of right atrial hypertrophy. जब भी राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होगी तो पी वेव जो है टॉल हो जाएगा, इज गोइंग टू बी टॉल मोर देन और इक्वल टू 3 स्मॉल बॉक्सेस. सो व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार इज कि अगर लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होगी तो पी वेव में नॉच आएगा और उसको हम बोलेंगे पी मिड-रेल, और अगर राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होगी तो टॉल पी वेव आएगा जिसको हम बोलेंगे पी पल्मोनल. एक बार हम ये ईसीजी देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेट्स सी द ईसीजी ऑफ पी मिड-रेल. इफ यू सी द सेकंड स्टैंडर्ड लीड एंड लुक एट द पी वेव, look at the P wave. P wave को यहाँ पे zoom करके भी बता रखा है in this insert. Here you can see that there is a notch in the P wave. यहाँ पे आपको छोटा सा notch दिख रहा है P wave के बीच में. That notched P wave that is there, this is called as the P mid-rail. Whereas if you see a tall P wave, something like this, look at this P wave. If you see the height of this P wave from this point to this point, so almost more than 3 small box. More than 3 small box is the height of the P wave. That is going to towards a tall P wave, and this tall P wave is referred as the P pulmonale. Here again you can see in this ECG. Look at the second lead and look at the P wave. Here is the P wave, and the P waves are very tall. They are very tall, looking like a tent. Tall tented P waves are there, and that is suggestive of the right atrial hypertrophy. So these are called as the P pulmonale. This is called as P pulmonale, and this particular thing where there was a notch, this is referred as the P mid-rail. So these are the two pathologies which is related with the P wave. Now let's add one more concept here from the physiology. ये तो हमें समझ में आ गया that कि फाइन की राइट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी होगी तो P pulmonale होगा, और लेफ्ट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी होगी तो P mid-rail होगा. अब देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक पेशेंट आया, आपने उसका ईसीजी किया और उसके ईसीजी में आपको टॉल पी वेव दिख रहा था, वेरी टॉल पी वेव. तो आपको लग रहा था कि इसको तो राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी होनी चाहिए थी, बिकॉज आपको पता था कि टॉल पी वेव तो राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी में आता है. आपने उसका इकोकार्डियोग्राफी किया और इकोकार्डियोग्राफी में पता पड़ा कि उसको तो राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी नहीं है, देयर इज नो राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी, लेकिन फिर भी उसका पी वेव बहुत बड़ा आ रहा था. दिस इज कॉल्ड एज सूडो पी पल्मोनल. This is called as pseudo P pulmonale, and this pseudo P pulmonale it is seen in hypokalemia. Hypokalemia means the potassium is less than 3.3. अगर पोटेशियम 3.3 से कम हो जाता है तो भी पी वेव बहुत बड़ा टॉल हो जाता है. दैट इज द सूडो पी पल्मोनल. नॉर्मली तो पी पल्मोनल आना चाहिए राइट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी की वजह से, लेकिन अगर बिना उसके आ रहा है तो उसको बोलेंगे सूडो पी पल्मोनल, और वो किस में आता है तो हाइपोकेलीमिया में आता है. नाउ एक और चीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द हार्ट साउंड्स.
देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारे को जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं हार्ट को, वैसे तो मैं आपको हार्ट साउंड्स अलग से बताऊंगा S1 S2 S3 S4, बट अभी के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब वेरियस हार्ट साउंड्स दे आर गेटिंग प्रोड्यूस, तो S1 कैसे आता है, मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व ये जब बंद होते हैं ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली बंद होते हैं। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बट ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली बंद होते हैं। उनके बंद होने से जो आवाज आती है दैट इज कॉल्ड एज द S1. So the closure of the mitral valve and the closure of tricuspid valve is called as S1. और क्योंकि मिट्रल वाल्व थोड़ा सा पहले बंद होता है, मान लीजिए ये रेड कलर में जो मैं बना रहा हूँ दिस इज द क्लोजर ऑफ द मिट्रल वाल्व एंड देन द ब्लैक कलर इज द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली ये कुछ इस तरीके से बंद होते हैं. मिट्रल वाल्व के क्लोजर को हम लिख देते हैं M1 एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोजर को साउंड को हम लिख देते हैं T1. अब क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होता है तो हमें ये एक सिंगल साउंड ही सुनाई देता है एंड दिस क्लब इज रेफर्ड एज द S1. इन दोनों क्योंकि हमें एक ही साउंड सुनाई देता है तो इनको हम साथ में बोल देते हैं कि S1 आ गया, द क्लोजर ऑफ द मिट्रल एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व. अब देखिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन मिट्रल स्टेनोसिस. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन मिट्रल स्टेनोसिस इज, अगर किसी को मिट्रल स्टेनोसिस हो जाएगा व्हेन द ब्लड इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रिया टू राइट वेंट्रिकल देयर इज नो प्रॉब्लम. बट क्योंकि मिट्रल स्टेनोसिस हो जाएगा तो यहाँ पे ब्लड बहुत धीरे धीरे आएगा और बहुत टाइम लगेगा. तो मुझे बताओ क्योंकि अब मिट्रल वाल्व के थ्रू जो ब्लड आ रहा है बहुत धीरे धीरे आ रहा है, टाइम ज्यादा लगेगा. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज वी वर एंटीसिपेटिंग कि मिट्रल वाल्व तो इस पॉइंट पे बंद हो जाना चाहिए था, वी वर एंटीसिपेटिंग यहाँ पे हो जाना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि उसको ज्यादा टाइम लगेगा तो हो सकता है कि मिट्रल वाल्व थोड़ा लेट बंद हो और द मिट्रल वाल्व इज क्लोजिंग वेरी वेरी नियर टू द ट्राइकस्पिड वाल्व. ऐसा हो सकता था मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के बीच की जो डिस्टेंस थी वो अब कम हो जाएगी. और ऐसा भी हो सकता था कि मिट्रल और ज्यादा लेट बंद होता और ट्राइकस्पिड के साथ ही बंद होता, मिट्रल और ट्राइकस्पिड साथ में बंद हो रहे. ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी कि मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व दे आर क्लोजिंग साइमल्टेनियसली, दिस इज आल्सो पॉसिबल. और अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती मिट्रल स्टेनोसिस के थ्रू, बहुत धीरे 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 ब्लड निकल रहा है, तो ट्राइकस्पिड तो बंद हो जाता और मिट्रल वाल्व तब भी बंद नहीं होता और हो सकता है कि मिट्रल वाल्व बाद में बंद होता, समथिंग लाइक दिस. So there are three possibilities with the variation in the S1 if there is mitral stenosis. तीन वेरिएशन पॉसिबल है मिट्रल स्टेनोसिस में. डिपेंड करता है कि कितना सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस है. हो सकता है कि मिट्रल वाल्व जो है थोड़ा लेट बंद हो सकता है वो इतना लेट बंद हो रहा है कि दोनों साउंड एक साथ सुनाई दे रही है, और हो सकता है इतना ज्यादा मिट्रल स्टेनोसिस है कि ब्लड बहुत ही धीरे आ रहा है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू तो आ गया, वो तो बंद भी हो गया, और मिट्रल वाल्व के थ्रू ब्लड आता जा रहा और मिट्रल वाल्व बाद में बंद हो रहा है. सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू द S1 of the mitral stenosis. It can be a narrow S1, it can be a single S1, or it can be a reverse split. So these are the three possibilities which are there when it comes to the S1 of mitral stenosis. There are few more points to be remembered when it comes to the S1 and loud S1 and the soft S1. We will discuss about the S1 in detail about a separate lecture about the S1 and S2. But here S1 loud और कौन सी कंडीशन में आता है, तो S1 loud आता है एनीमिया, प्रेगनेंसी एंड मिट्रल स्टेनोसिस में, और सॉफ्ट S1 सुनाई देता है हमें मिट्रल रीगर्गिटेशन एंड वेरी सीवियरली कैल्सिफाइड मिट्रल स्टेनोसिस में. सो दैट इज जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. बट अदरवाइज व्हाट इज टू बी रिमेंबर्ड इज कि S1 में मिट्रल स्टेनोसिस के साथ क्या क्या वेरिएशन आता है, तो ये सारे वेरिएशंस आ सकते हैं. नाउ कमिंग टू द पैथोलॉजीज ऑफ द PR इंटरवल. कल हम in the previous video we have discussed about the mnemonic for the various duration of the ECG waves, और हमने जो वो mnemonic पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से था QQR PPR. क्योंकि PR इंटरवल 4th नंबर पे आ रहा था, तो और ये इंटरवल है तो इसका ड्यूरेशन हो जाएगा 3 to 5 स्मॉल बॉक्स. So the normal PR interval is 3 to 5 small box. अगर इसको मिली सेकंड में लिखेंगे तो मिली सेकंड में ये हो जाएगा 120 to 200 मिली सेकेंड्स. 40 से मल्टीप्लाई करना है. सो नॉर्मल PR इंटरवल इतना होना चाहिए. PR इंटरवल का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द P वेव टू द बिगनिंग ऑफ द QRS. इसको हम बोलते हैं PR इंटरवल. अब देखिए इसमें दो तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है. या तो ये PR इंटरवल लेस देन 3 हो जाए, या ये PR इंटरवल मोर देन 5 हो जाए, मोर देन 5 स्मॉल बॉक्स हो जाए. These are the two problems that can happen with the PR interval. So we are going to discuss them one by one. First हम बात करते हैं PR interval का more than 5 होना. अगर PR interval more than 5 small box हो जाता है, if the PR interval is having more than 5 small box, means
वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इन द एवी नोड। ये देखिए कैसे, एक बार हम यहाँ पे समझते हैं ये होगा कैसे कि पीआर इंटरवल नॉर्मली तो 3 to 5 स्मॉल बॉक्स होता है, लेकिन वो 5 से ज्यादा कैसे हो सकता है? तो टू अंडरस्टैंड दिस, जैसे ही ऐसे नोड ने फायर किया, द इम्पल्स विल गो टू द राइट एट्रिया, विल गो टू द लेफ्ट एट्रिया। एट द सेम टाइम द इम्पल्स विल ऑल्सो ट्रेवल एंड विल नॉक एट द गेट ऑफ एवी नोड कि मेरे को अंदर जाने दो। हमने बोला था कि जैसे ही ऐसे नोड फायर करता है, जैसे ही ऐसे नोड फायर करता है, उसकी वजह से पी वेव आता है, द राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रिया। दिस वाज द पी वेव। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये जो इंपल्स था ये एवी नोड के गेट पे जाके नॉक भी करता है। जब ये नॉक करता है वहां पे जाके, तो एवी नोड इज अ फास्ट प्रोसेसर और अ स्लो प्रोसेसर। एवी नोड तो बहुत स्लो प्रोसेसर है, तो वो बहुत टाइम लेता है, और उस टाइम तक ये इंपल्स यहीं पे वेट कर रहा है। तो उसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, there is going to be straight line, and afterwards the impulse will be passing through this slow processor। उसके बाद में ये भी नोड इस impulse को आगे जाने देता है और बंडल ऑफ इसमें impulse जाता है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मान लीजिए ये एवी नोड जो कि पहले से एक स्लो प्रोसेसर था, ये थोड़ा सा और खराब हो गया। अगर ये एवी नोड और खराब हो जाएगा तो ये और स्लो हो जाएगा, और ज्यादा टाइम लेगा। तो अगर ये और ज्यादा टाइम लेगा तो पीआर, ये जो पी वेव के बाद में जो फ्लैट लाइन आती है, ये थोड़ी सी और लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, एंड देन द इंपल्स विल पास थ्रू। तो अगर एवी नोड में डैमेज हो जाता है, आप देखो कि पीआर इंटरवल बढ़ गया। एवी नोड में अगर डैमेज हो गया तो पीआर इंटरवल बढ़ गया, और फिर इंपल्स विल पास, एंड देन द डीपोलराइजेशन ऑफ द सेप्टम इज गोइंग टू हैपन, और उसकी वजह से क्यू वेव आएगा, देन आरएस वेव आएगा, एंड देन देयर विल बी टी वेव। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। द पॉइंट इज कि एवी नोड के खराब होने की वजह से, if there is a damage in the AV node, you can see that the PR interval has been increased. So we have understood that prolonged PR interval can be seen if there is a defect in the AV node. So prolonged PR interval means more than 5 small box, suggestive of defect in AV node. AV node में कुछ ना कुछ defect है, and defect in the AV node it is called as hard block. अगर AV node में defect होता है तो उसको हम बोलते हैं hard block. So it's as simple as that कि अगर AV नोड खराब हो गया तो PR इंटरवल बढ़ सकता है, और अगर PR इंटरवल बढ़ रहा है और that is seen in the ECG, that is called as heart block. Now why there will be a damage in the AV node? AV node क्यों खराब होगा? AV node खराब हो सकता है rheumatic fever के पेशेंट में। AV node can be damaged in hypothyroidism. AV node can be damaged in a patient of sarcoidosis, Lyme disease, toxoplasma. It can be hemochromatosis. So these are some of the common causes of the damage to the AV node. So heart blocks is basically damage to the AV node. So these are the etiologies of the heart block. Now depending on the severity, the heart block is divided into 3 categories. कि कितना ज्यादा डैमेज हुआ है एवी नोड में, उसके अकॉर्डिंग हार्ट ब्लॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अगर बहुत ही कम डैमेज है तो फर्स्ट डिग्री, ज्यादा है तो सेकंड डिग्री, और उससे भी ज्यादा है तो थर्ड डिग्री। सेकंड डिग्री को इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स, Morbitz 1 and Morbitz 2. The second degree heart block is further divided into 2 categories, Morbitz 1 and Morbitz 2. So overall आप देखो कि the damage to the AV node is divided into 3 categories, first, second and third degree. Now how we are going to identify that in the ECG? For example, आपको उन्होंने एक ECG दिया और उन्होंने ऑप्शंस में दे रखा है आपको कि ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक इट इज। नाउ द मोमेंट you see that ECG is going towards the heart block, you have to focus on the PR interval. आपको PR इंटरवल देखना है, क्योंकि हार्ट ब्लॉक की ECG में PR इंटरवल बढ़ रहा होगा। नाउ हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मान लीजिए कि ECG दिया आपको कुछ इस तरीके से, आप सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई कर लो P वेव को और T वेव को। फॉर एग्जाम्पल हियर इज द P वेव, द T वेव, द P वेव, T वेव, P and T. Now the next thing that you are going to identify is the PR interval. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस पर्टिकुलर ECG में यहाँ पे PR इंटरवल जो था इस ECG के अंदर, लेट्स से इट वाज 8 स्मॉल बॉक्स, इट वाज 8 स्मॉल बॉक्स। मोर देन 5 हो गया ना, ये तो मोर देन 5 हो गया तो हार्ट ब्लॉक हो गया। तो 8 स्मॉल बॉक्स था, मैंने नेक्स्ट वाला कैलकुलेट किया वो भी 8 था, नेक्स्ट वाला भी 8 था,
तो यू कैन सी दैट द PR इंटरवल इज इंक्रीज्ड एंड इट इज फिक्स्ड, इट इज नॉट चेंजिंग। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, देयर इज अ फिक्स्ड प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। Fixed prolonged PR interval, that is called as first degree heart block. Now coming to the second degree heart block. Second degree heart block में there are two types, Morbitz 1 and Morbitz 2. Morbitz 1 and Morbitz 2. Now let's understand this here in a rough diagram. एक बार हम यहाँ पे एक rough diagram में Morbitz 1 को समझते हैं. For example, here is the representation of the SA node. जैसे ही SA नोड फायर करेगा, द इम्पल्स विल ट्रेवल टू द राइट एट्रिया, विल ट्रेवल टू द लेफ्ट एट्रिया, और उसकी वजह से P वेव आता है. दिस इम्पल्स विल आल्सो नॉक एट द गेट ऑफ AV नोड. AV नोड के वहां पे नॉक करता है और बोलता है कि मुझे आगे जाने दो. बट अभी हम बोल रहे हैं कि AV नोड थोड़ा सा खराब हो गया, स्लो प्रोसेसर है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा था, तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा था, एंड देन वी आर हैविंग द QRSNT. उसके बाद की चीजें ठीक थी. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो AV नोड है इसका डैमेज बहुत ही ज्यादा हो गया. और आपको पता है कि वेंट्रिकल के अंदर इंपल्स पहुंचाने का एक ही रास्ता होता है, दैट इज AV नोड. एंड नाउ वी आर सेइंग कि AV नोड का डैमेज बहुत ही ज्यादा हो गया. देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, SA नोड ने फायर किया, इंपल्स ने P वेव जनरेट किया, और P वेव के बाद हमें पता था कि QRS आना चाहिए, हर P के बाद QRS आना चाहिए. सो द मोमेंट SA नोड फायर्ड, द इम्पल्स विल गो टू द AV नोड, और AV नोड के वहां जाके नॉक करता है कि मुझे अंदर जाने दो. तो AV नोड क्या था कि ज्यादा टाइम ले रहा था. तो व्हाट वाज हैपनिंग वाज दैट एक बार ऐसा हुआ कि ऐसे नोड ने फायर किया, P वेव तो जनरेट हो गया, और वो इम्पल्स जाके AV नोड पे नॉक किया, और AV नोड ने उसको अंदर जाने ही नहीं दिया. अगर जाने ही नहीं दिया तो P वेव के बाद में QRS आएगा ही नहीं, और वो P वेव वहीं खत्म हो जाएगी, वो कंडक्ट होगी नहीं. अब क्योंकि ये P वेव कंडक्ट ही नहीं हुई, अगर P वेव के बाद में QRS नहीं आता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी वेंट्रिकल में गई नहीं, तो इसको हम बोल देते हैं ड्रॉप बीट. इट्स अ ड्रॉप P वेव, कि ये तो आगे गई नहीं. देन अगेन द SA नोड विल फायर, SA नोड ने फिर से फायर किया, P वेव जनरेट हुई, और ये P वेव फिर AV नोड ने अंदर जाने दी. अगर अंदर जाने दी तो QRS आ जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉप बीट. ड्रॉप बीट का मीनिंग ये होता है कि कभी कभी AV नोड इतना खराब हो जाता है कि व्हेन द SA नोड फायर्स, द इंपल्स गोज टू द AV नोड, और AV नोड उसको अंदर जाने ही नहीं देता. वो इतना स्लो हो गया कि वो अंदर जा ही नहीं पाई वेव, तो P वेव के बाद में QRS आता ही नहीं है, और उसको हम बोलते हैं ड्रॉप बीट. सो व्हाट इज सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. अब आपको ड्रॉप बीट का मीनिंग समझ में आ गया. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. सेकंड डिग्री में मोबिट्स 1 क्या होता है, तो हमने क्या किया कि सारी P वेव और T वेव को लेबल कर दिया. P के बाद में QRS आ रहा है, after the P wave we are having the QRS, then is the T wave, after P wave we are having the QRS, then the T wave, the P wave, the QRS and the T wave. Then we were having a P wave which was not followed by QRS. इस P के बाद में तो QRS आया ही नहीं, मतलब ये P आगे कंडक्ट ही नहीं हुई, और इस P wave का क्या नाम हो जाएगा, ड्रॉप बीट. इट्स कॉल्ड एज ड्रॉप बीट. And then again we are having the P wave and the QRS, P wave and the QRS. So you are having a drop beat. Now, the moment you have the drop beat, आपको ये देखना है कि PR इंटरवल जो है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मान लीजिए आपने देखा कि यहाँ पे ड्रॉप बीट आया, तो यू विल सी द PR इंटरवल. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पे PR इंटरवल था 6 स्मॉल बॉक्स, हियर इट वाज 7 स्मॉल बॉक्स, हियर इट इज 8 स्मॉल बॉक्स. सो यू कैन सी दैट द PR इंटरवल इज इंक्रीजिंग, और एक पॉइंट ऐसा आया कि वो P वेव कंड्यूस ही नहीं हुआ वेंट्रिकल के अंदर, और ड्रॉप बीट आ गया. And then again the same cycle will be repeated. The 6 small box, 7 small box, 8 small box, drop beat. So if that pattern is there, this is called as Morbitz 1, which is also called as Wenckebach phenomenon. This is also called as Wenckebach phenomena. So Morbitz 1 या Wenckebach phenomena में what is happening with the PR interval is there is progressive prolongation of PR interval. Followed by drop beat. There is a progressive prolongation. PR interval बढ़ता ही जा रहा है. इसी कैटेगरी में एक और होता है Morbitz 2, जो कि Morbitz 1 से ज्यादा सीरियस है. इसके अंदर क्या होता है,
If you again label the P wave, the T wave, the P wave, the T wave, you will find कि एक ऐसा P wave आ रहा है जिसके बाद में QRS आया ही नहीं. अगर P wave के बाद में QRS नहीं आ रहा है तो उस P wave का नाम हो जाएगा drop beat. So here also we are having the drop beat. So Morbitz 1 और Morbitz 2 दोनों के अंदर drop beat आता है. तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि Morbitz 1 होगा, Morbitz 2 होगा? Morbitz 2 के अंदर जो होता है वो PR इंटरवल जो होता है वो चेंज नहीं हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे PR इंटरवल था 6 स्मॉल बॉक्स, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और फिर ड्रॉप बीट आ गया, फिर वापस से 6 स्मॉल बॉक्स ड्रॉप बीट. So here you can see that the PR interval is not changing. So I can say it is a fixed PR interval. The fixed PR interval followed by drop beat. So there are two types in the second degree, Morbitz 1 and Morbitz 2. कैसे पता करना है? सबसे पहले तो ड्रॉप बीट को आइडेंटिफाई कर लेना है. जैसे ही आपकी ड्रॉप बीट आइडेंटिफाई हो जाती है, उसके पहले वाला पीआर इंटरवल और उसके बाद वाला पीआर इंटरवल ये आपको देख लेना है. अगर वो अलग अलग है तो Morbitz 1 है, लेकिन अगर ड्रॉप बीट के पहले वाला पीआर इंटरवल और बाद वाला पीआर इंटरवल सेम है तो वो हो गया सेकेंड डिग्री. सो दिस इज हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई सेम है या अलग अलग है. ड्रॉप बीट आइडेंटिफाई कर लो, उससे पहले का पीआर इंटरवल, उसके बाद का पीआर इंटरवल देख लो और उनको देख लो, कंपेयर कर लो कि सेम है या अलग अलग है. अगर अलग अलग है तो Morbitz 1 है, सेम है तो Morbitz 2 है. राइट. Coming to the next one, that is third degree heart block, the most severe one, the third degree heart block. What happens in third degree heart block is कि जैसे ही ऐसे नोड फायर किया, the impulse will travel in the atria and because of that we are going to generate the P wave. P wave आता है उसकी वजह से. तो और ये इंपल्स जो था ये वेंट्रिकल में जाना था वाया द AV नोड. अब AV नोड इतना खराब हो गया है कि दैट इज नॉट ट्रांसमिटिंग इवन अ सिंगल इंपल्स फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल. एट्रिया से वेंट्रिकल में इंपल्स जा ही नहीं रहा है. अगर ऐसा हो जाता है, देयर इज अ कंप्लीट डैमेज, there is no electrical impulses transmitting via the AV node. This is called as AV dissociation. AV dissociation हो गया. Now what is going to happen? Impulse जा ही नहीं रहा है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? फिर वेंट्रिकल की मसल कैसे एक्टिवेट होगी? Someone has to take the responsibility. अब क्योंकि एट्रिया से इंपल्स नहीं आ रहा है तो the responsibility will be taken by bundle of his. अब बंडल ऑफ हिस बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इंपल्स जनरेट करता हूं और मैं वेंट्रिकल को डीपोलराइज करूंगा. सो नाउ द इंपल्स विल बी जनरेटेड बाय द बंडल ऑफ हिस एंड दैट इंपल्स इज गोइंग टू डीपोलराइज द वेंट्रिकल एंड वी नो दैट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन विल लीड टू QRS. नॉर्मली तो व्हाट हैपेंस इज कि हमारे हार्ट में एक ही पेस मेकर था, दैट वाज एसए नोड पहले एट्रिया को डीपोलराइज कर रहा था, फिर वही इंपल्स आगे जाके वेंट्रिकल को डीपोलराइज कर रही थी. इसीलिए ईसीजी में पहले पी वेव आता है और पी के बाद में देयर इज QRS. सो देयर वाज अ वेरी नाइस रिदमिक मूवमेंट वाज हैपनिंग इन द हार्ट, क्योंकि एसए नोड फायर कर रहा था, उससे पहले पी वेव आ गया, वही इंपल्स आगे गई और आगे जाके QRS बना दिया. अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया कि एसए नोड जो है वो केवल एट्रिया को कंट्रोल कर पा रहा है, वेंट्रिकल को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा. वेंट्रिकल को कौन कंट्रोल कर रहा है? बंडल ऑफ हिस. एसए नोड जो होता है वो एक मिनट में फायर करता है, से फॉर एग्जांपल लेट्स से 70-75 टाइम्स. बंडल ऑफ हिस तो इतना फास्ट फायर नहीं कर सकता है. बंडल ऑफ हिस तो मैक्स टू मैक्स फायर कर पाएगा 40-45 टाइम्स इन अ मिनट. तो इस पेशेंट में क्या होगा कि इसका जो एट्रिया होगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा 70 टाइम्स, एक मिनट में 70 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे जस्ट 45 टाइम्स. देयर इज नो सिंक्रोनस मूवमेंट इज हैपनिंग बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल. तो उसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि नॉर्मली तो पी के बाद में QRS आना चाहिए था हर बार, बट यहाँ पे तो पी वेव अलग चल रहा है, QRS अलग चल रहा है, दोनों का कोई लेना देना ही नहीं है. So there is a complete haphazard movement will be there. P wave will be coming on its own, the QRS will be coming on its own. Obviously the P wave will be coming more frequently, than the QRS, and there is no relation between them. So if you see the ECG, it will look like this. If I label the P waves here, आप देखिए, here is the P wave, here is the P wave, ये यहाँ पे QRS के ऊपर चढ़ गया P wave, then the T wave. Here the P wave, P, T. You can see that कि बहुत ही random places पे P wave आ रहा है, and there is no relation between the P and QRS. कोई relation ही नहीं है. P wave अपनी मर्जी से आ रहा है, QRS अपनी मर्जी से आ रहा है. So the atrial rate is called as the P wave, and the ventricular rate is called as the QRS. And here you can see the atrial rate is more than the ventricular rate.
This particular thing is called as the third degree heart block or the complete heart block. Third degree heart block or complete heart block. So there is no relation between P and QRS. There is no relation between P and QRS. There is a complete AV dissociation is going to be there. Because of that, what is going to happen is the clinical features will be like this. See, normally what is happening is कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड वेंट्रिकल में आता है, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. सो देयर वाज अ वेरी नाइस रिदमिक मूवमेंट और सिंक्रोनस मूवमेंट वाज हैपनिंग. देखिए कैसे, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता था तब वेंट्रिकल रिलैक्स करता था, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है एट्रिया रिलैक्स करता है. बट अब इसमें ऐसा नहीं होगा. एट्रिया अपने हिसाब से काम कर रहा है, वेंट्रिकल अपने हिसाब से काम कर रहा है. सो समटाइम इट मे हैपन कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें. आपके और मेरे अंदर तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इस पेशेंट में ऐसा हो सकता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें. मतलब कि जब पी वेव आ रहा है उसी टाइम पे क्यूआरएस आ रहा है. आप देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिए, हियर यू कैन सी द पी एंड क्यूआरएस इज कमिंग साइमल्टेनियसली. इसमें भी आ रहा है साइमल्टेनियसली. सो अगर पी और क्यूआरएस साइमल्टेनियसली आ जाएगा तो एट्रिया और वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. और अगर ऐसा हो गया तो पेशेंट के हार्ट से जो आउटपुट निकलना था, जो ब्लड एओर्टा में आना था, वो तो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए. तो इफेक्टिव आउटफ्लो निकलेगा ही नहीं. एओर्टा में ब्लड नहीं आएगा तो कैरोटिड में ब्लड नहीं जाएगा तो ब्रेन में नहीं जाएगा. And if that happens for few seconds, if the blood is not going to the brain, the patient will lose the consciousness. So in the complete heart block, there can be recurrent syncope episode. पेशेंट को रिकरेंट सिंकोप भी हो सकते. बार बार पेशेंट जो है will lose the consciousness, and that is called as Stokes-Adams syndrome. Patient can lose the recurrent syncope episode will be there. That is called as Stokes-Adams syndrome. थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में देखने को मिलता है. थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में इफ वी सी द जेवीपी फाइंडिंग, मैंने आपको बताया था कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में, द जेवीपी विल बी वेरी ह्यूज ए वेव विल बी देयर. दैट इज कॉल्ड एज द कैनन ए वेव. कैनन ए वेव विल बी देयर, right? So this is called as the third degree heart block or the complete heart block. So let's summarize this, the heart blocks. In the first degree, there was fixed prolonged PR interval, and there is no drop beat. There is no drop beat. When it comes to Mobitz 1 and Mobitz 2, yes, the drop beat was present. Mobitz 1 and Mobitz 2 में drop beat तो होता है. मैंने आपको बताया था कैसे उनको डिफरेंशिएट करना है कि पीआर इंटरवल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो इन मोबिट्स 1 देयर इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द पीआर इंटरवल. Progressive increase in the PR interval, whereas the Mobitz 2, it is the fixed PR interval with the drop beat. That is Mobitz 2. When it comes to complete heart block, means there is no relation between P and QRS. No relation between P and QRS, called as complete heart block. How we are going to treat these conditions? When it comes to the first degree and the Mobitz 1, the Wenckebach phenomena, we don't have to worry much. We just have to wait and watch. We just need to observe the patient. Whereas the Mobitz 2 and the third degree heart block, they are more severe. First, we will plan for a temporary pacemaker, and if not reverted back, then we need to go for a permanent pacemaker. We need to put a pacemaker. So this is how we are going to manage a patient of heart. Now there are some special scenarios in the heart block. Let's see this ECG, and again let's label the waves. The wave which is just before the QRS is going to be the P wave and the T wave. Even you can see the morphology also. The P wave and T wave morphology is slightly different, and based on that, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप ये morphology देखिए, तो आप morphology देख के ये identify कर पाएंगे कि ये वाला wave कौन सा है. Yes, it is looking very similar to P wave, means this is also a P wave. So if I label that in this patient, here is the P wave, here is the P wave, then is the QRS, and then is the T wave. So what we have identified here is, इस patient में हमने ये identify किया कि इसमें एक बहुत ही peculiar pattern आ रहा है. After every 2 P wave, 1 QRS is coming. After every 2 P wave, 1 QRS is coming. और या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, आप देखिए ये वाला P wave के बाद में QRS नहीं आया, मतलब कि ये ड्रॉप बीट हो गया. इस वाले P wave के बाद में QRS नहीं आया, मतलब ये ड्रॉप बीट हो गया. So there is every alternate P wave is getting dropped.
इन दिस पर्टिकुलर ईसीजी आप देखो ये ड्रॉप बीट हुआ, फिर ये आगे चला गया, क्यूआरएस आ गया इसके बाद, तो फिर वापस से ड्रॉप बीट आया, then again the next P wave will go to the ventricle, will generate the QR. So every alternate P wave is getting dropped. अगर इस ECG में आपको बोलूं कि इसमें P wave और QRS का रेशियो निकालते हैं, तो after every 2 P wave there is 1 QRS. हर 2 P wave के बाद में एक QRS आता है. This is called as 2:1 block. Called as 2:1 block. So after every 2 P wave 1 QRS. After every 2 P wave 1 QRS, 2:1. अगर ऐसा होता है कि हर 3 के बाद में एक QRS आ रहा है, आफ्टर एवरी 3 P waves 1 QRS is coming, that is 3:1. So we can have 2:1, 3:1, 4:1 block also. When it comes to, there is a pharma correlation here. If you give metoprolol decreases the heart rate. Verapamil also decreases the heart rate. दोनों ड्रग्स हार्ट रेट को कम करती है, इसीलिए हम मेटोप्रोलोल और वेरापामिल साथ में देना अवॉइड करते हैं. Because metoprolol or verapamil, that is going to increase the risk of AV nodal block. AV नोड को ब्लॉक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से पेशेंट को सिग्निफिकेंट ब्रेडिकार्डिया हो सकता है. Patient is having a significant risk of bradycardia. That is why we don't give the beta blocker and verapamil together. Now let's do some practice questions. These are the 5 practice questions which are there for the heart block. Let's first do the first one. The options are written in front of you. The moment you see such options in any given ECG in your exam, what you will do is, जब भी आपको ये देखते ही पता लग जाएगा ना यार ऑप्शन में दे रहा है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, मोबिट्स 1, मोबिट्स 2, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ट ब्लॉक की ECG. सबसे पहले क्या करो, आप आइडेंटिफाई कर लो P वेव और T वेव को. उससे आपको ये पता लग जाएगा कि ड्रॉप बीट है या नहीं है. So here is the P wave, next is the T wave, the P wave, the T wave, P, T, P, and after the P wave there is no QRS, again the P and T. अब जैसे ही आपको एक ऐसा P wave मिल गया which is not followed by QRS, means this is drop beat. आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि ड्रॉप बीट है या नहीं है. अगर ड्रॉप बीट है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर इट्स अ मोबिट्स 1 और मोबिट्स 2. कैसे पता करेंगे? जस्ट बिफोर एंड आफ्टर का पीआर इंटरवल देख लो. यहाँ पे पीआर इंटरवल है यहां से लेके यहां तक, और यहाँ पे पीआर इंटरवल है इतना सा. सो यू कैन सी दैट द पीआर इंटरवल इज चेंजिंग. ड्रॉप बीट के पहले और बाद का पीआर इंटरवल अलग अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोबिट्स 1. दिस इज मोबिट्स 1 और द वेंकी-बेक फिनोमेना. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन द सेम एक्सरसाइज विल डू. QRS के पहले वाला वेव P वेव हो गया, देन इज द T वेव. P, T, P, T, P, T, and there is a P which is not followed by QRS. वापस P वेव आ गया. So we have identified that okay here is the drop beat. जैसे ही ड्रॉप बीट आ गया, अब हमारे दिमाग में चल रहा है या तो ये मोबिट्स 1 है या मोबिट्स 2 है. मुझे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पीआर इंटरवल को देखना है ड्रॉप बीट के पहले और बाद में. तो जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया तो here you can see the PR interval is from here to here, almost 9 small box, and here the PR interval is from here to here, almost 7 small box. So you can see that they are changing. The PR interval is changing before the drop beat, and after the drop beat they are changing. So if they are changing, it is going towards mobits 1. Again mobits 1. Coming to the next one. If I label the P wave here, here is the P wave. You can see the shape of this P wave. ये shape की जो भी wave है वो सारी P wave है. So here is the P wave, here is the P wave, then is the T wave. Here is the P wave. और इस शेप के जो भी वेव है सारे P wave है. So I am labeling them P wave, T wave, T. Then I am labeling the T waves. अब देखो P wave कहीं पे भी आ रहा है,
ये कभी QRS के पहले भी आ रहा है, QRS और T वेव के बीच में आ रहा है, कभी ये T वेव के ऊपर चढ़ गया. सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द P एंड QRS. और P वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू QRS. QRS तो केवल 3 आए थे, आप देखो P वेव तो बहुत सारे आ गए. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज द कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक. The atrial rate is much more higher than the QRS. Then the next one, the wave which is just before the QRS is generally the P wave. तो ये P wave जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 वेव थे, मुझे ये पता नहीं लग रहा था कि कौन सा P है और कौन सा T है. लेकिन अब मेरे को जैसे ही समझ में आ गया कि QRS से पहले वाला जो वेव है वो P वेव है. आप P वेव का शेप देखो, ऐसा स्लैंटिंग और इस तरीके का दिख रहा है, टेंट जैसा दिख रहा है. तो ये वाली वेव जो है ये भी वैसी दिख रही है, तो इसका नाम भी P वेव हो गया. इज ऑल्सो P वेव. Then after the QRS, the wave that is there is the T wave. So here is the P wave and the T wave, and something like this. This pattern is going on. So you can see that after every 2 P wave, 1 QRS is coming. After every 2 P wave, 1 QRS is coming. हर 2 P के बाद में एक QRS आ रहा है. और अगर ऐसा होता है हर 2 P के बाद में एक QRS आ रहा है, this is 2:1 pattern. This is 2:1 block. After every 2 P wave, 1 QRS is coming. Let's see the next one. Again the same exercise, the P wave, the T wave, the P wave not followed by QRS, again there is a P wave. The moment there is a P wave not followed by QRS means this is a drop beat. And if there is a drop beat means it's going to be a Mobitz's 1 or Mobitz's 2, either Mobitz's 1 or Mobitz's 2. So I will see the PR interval. यहाँ पे PR interval था यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे PR interval है यहाँ से लेके यहाँ तक. Same. If the PR interval is same before and after the drop beat, they are not changing, they are same, means it's going towards the Mobitz's 2. So it is a Mobitz's 2. Mobitz's 2 heart block. So this is how we identify the heart block. Now, these are the pathologies which are related with the prolonged PR interval. Prolonged PR interval, ये जो पूरा डिस्कशन हमने चालू किया था, ये डिस्कशन हम पढ़ रहे थे PR इंटरवल की हेडिंग के अंदर. नॉर्मली जो PR इंटरवल होता है 3 to 5 स्मॉल बॉक्स होता है, और अगर 5 से ज्यादा हो जाता है तो दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द हार्ट ब्लॉक. अब हम बात करेंगे कि कभी कभी कुछ पैथोलॉजीज में PR इंटरवल लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स हो जाता है. PR इंटरवल 3 से भी कम हो जाता है. अगर ऐसा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम. द वेरी हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ नेटबोर्ड, प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम. If the PR interval is less than 3, it is going towards the pre-excitation syndrome. So let's understand how it is possible कि PR interval less than 3 हो जाएगा. More than 5 तो समझ में आ रहा था कि AV node खराब हो गया तो more than 5 हो गया, लेकिन less than 3 कैसे हो सकता है? How it is possible? So now we are going to discuss the short PR interval. Means the PR interval is less than 3 small box. If we say that in the millisecond, we know that one small box is 40 millisecond. So PR interval less than 120 millisecond is called a short PR interval. ऐसा कैसे होगा? देखिए, जैसे ही ऐसे नोड फायर करता है, जैसे ही ऐसे नोड ने फायर किया, उसकी वजह से जो वेव आया दैट इज P वेव. P वेव आ गया. अभी तक तो सब कुछ ठीक है. नाउ दिस इंपल्स विल गो एंड विल नॉक एट द गेट ऑफ AV नोड कि मुझे अंदर जाने दो. तो AV नोड पहले चेक करेगा कि अंदर कोई पहले से इंपल्स तो नहीं घूम रहा है. अगर पहले से इंपल्स घूम रहा है तो AV नोड नहीं जाने देता है. एंड वी नो दैट AV नोड इज अ स्लो प्रोसेसर, ये अपना टाइम लेगा. इस वाले पेशेंट में प्रॉब्लम ये थी कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक एबनॉर्मल कंडक्शन पाथवे था. देयर वाज अ एबनॉर्मल कंडक्शन पाथवे बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाय बर्थ. एंड दिस पर्टिकुलर एक्सेसरी पाथवे व्हिच वाज देयर, इसका नाम था बंडल ऑफ केंट. सो देयर वाज अ एक्सेसरी कनेक्शन बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एक्सेसरी कनेक्शन था. उसकी वजह से क्या हुआ, इट इज लाइक अ बाईपास हाईवे. इट्स लाइक अ बाईपास हाईवे. जैसे ही ऐसे नोड ने फायर किया, राइट एट्रिया डीपोलराइज हुआ, फिर लेफ्ट एट्रिया डीपोलराइज हुआ, और ये इंपल्स जैसे ही लेफ्ट एट्रिया डीपोलराइज हुआ, यहां से ये इंपल्स इस बाईपास कंडक्टरी पाथवे से होते हुए तुरंत लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गई. इंपल्स तुरंत पहुंच गई. तो यू कैन सी दैट वी हैव बाईपास द AV नोड. अगर आपने AV नोड को बाईपास कर दिया, AV नोड तो स्लो प्रोसेसर था, इसलिए PR इंटरवल जो आता था वो 3 to 5 स्मॉल बॉक्स आता था. लेकिन अब इंपल्स तुरंत चला गया, तुरंत चला गया. तो जैसे ही आप देखो लेफ्ट एट्रिया का इंपल्स खत्म होगा, लेफ्ट एट्रिया का एक्टिवेशन खत्म होगा, और उसके बाद तुरंत वेंट्रिकल में इंपल्स चला गया.
तो वहां पे डीपोलराइजेशन चालू हो जाएगा। नॉर्मली तो पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी एवी नोड के थ्रू आती तो सबसे पहले डीपोलराइजेशन कौन से पार्ट का होता है, वेंट्रिकल में सबसे पहले सेप्टम का होता। बट यहाँ पे तो सेप्टम का होगा ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल इज गोइंग टू डीपोलराइज। सेप्टम के डीपोलराइजेशन से क्यू वेव आता है। अब यहाँ पे तो क्यू वेव आएगा ही नहीं। क्यू वेव इसलिए नहीं आया क्योंकि सेप्टम पहले डीपोलराइज नहीं हो रहा है। पहले कौन सा डीपोलराइजेशन हुआ, रिमेनिंग पार्ट का, और रिमेनिंग पार्ट से कौन सा वेव आता है, आरएस वेव। तो जैसे ही पी वेव खत्म हुआ, द सेकेंड हाफ ऑफ द पी वेव विच इज रिलेटेड विद द लेफ्ट एट्रिया, suddenly after that there is going to be RS wave, something like this. There is going to be RS wave, and then there is going to be the T wave. So because of this accessory pathway, you can see that we have bypassed the AV node, और जैसे ही हमने AV node को bypass किया, PR interval बहुत short हो गया, PR interval बहुत short हो गया, almost P wave के तुरंत बाद QRS चालू हो गया. So what are the things that you have seen? If there is a accessory pathway between the left atrium and left ventricle, this is referred as the Wolff-Parkinson-White syndrome. Wolff-Parkinson-White syndrome. This is basically a pre-excitation syndrome. This is a type of pre-excitation syndrome. इसके अलावा भी और भी pre-excitation syndrome होते हैं, but this is the important one to be remembered. Now, what are the various ECG changes that you are going to notice? Obviously, you can see that there is absent Q wave. Q wave तो आई नहीं, there is absent Q wave. If you see the QRS, it is having some very peculiar features. अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके आप समझना. देखिए, अब impulse यहाँ से आ गया, तो now the impulse is supposed to depolarize the ventricle. वेंट्रिकल को नॉर्मली जो डीपोलराइज करता है वो तो पुर्किंजे फाइबर करता है, वेरी फास्ट. द मोस्ट स्पीड कंडक्शन हैपेंस इन द पुर्किंजे फाइबर. सबसे फास्ट कंडक्शन ही पुर्किंजे फाइबर में होता है. लेकिन पुर्किंजे फाइबर बहुत लोयल है. पुर्किंजे फाइबर को अगर आपको यूज करना है, द इंपल्स हैज टू कम फ्रॉम द बंडल ब्रांचेस. मतलब कि अगर ऑर्डर जो है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, वो बंडल ऑफ फेस, लेफ्ट बंडल, राइट बंडल के थ्रू आएगा ना, तो ही आप पुर्किंजे फाइबर्स को यूज कर सकते हो. अब यहाँ पे तो क्या हो गया कि आप इंपल्स को कहीं और से लेके आ गए, तो पुर्किंजे फाइबर बोलेगा मैं इस इलेक्ट्रिसिटी को स्प्रेड नहीं करूंगा, तुम्हें जैसा करना है वैसे कर लो, मैं नहीं करने वाला. अब अगर हमारे को खुद से इसको करना पड़ेगा, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज the first myocyte will depolarize here. The moment the impulse will come, first myocyte will depolarize, then the next myocyte, then the next myocyte, then the next myocyte, and this is called as intermyocyte conduction. और intermyocyte conduction जो होता है वो पुर्किंजे फाइबर से तो बहुत ही स्लो होता है. इट इज वेरी स्लो. अगर पुर्किंजे से वो करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्लो है, तो पूरे वेंट्रिकल को डीपोलराइज करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. सो आई कैन से इट इज गोइंग टू टेक more time to depolarize ventricle. वेंट्रिकल को डीपोलराइज करने में बहुत टाइम लगेगा. और वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को कौन सी वेव बोलते हैं? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को तो हम बोलते हैं QRS. तो इसका जो QRS बनेगा वो बहुत ही वाइड बनेगा. इट इज गोइंग टू बी ब्रॉड और वाइड QRS, क्योंकि इंटरमायोसाइट कंडक्शन हो रहा है ना, तो बहुत धीरे धीरे होता रहेगा. तो हियर यू कैन सी दैट इसका जो QRS है, नॉर्मली जो QRS होता है वो तो 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्स में खत्म हो जाता है. बट यहाँ पे QRS का ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा होगा. इज गोइंग टू बी वेरी मच मोर. सो द सेकंड चेंज दैट यू आर गोइंग टू नोटिस इज वाइड QRS. द QRS इज गोइंग टू बी मोर देन 2.5 स्मॉल बॉक्स. देन द थर्ड थिंग दैट यू विल नोटिस इज, आप यहाँ पे देखिए, हियर इज द ECG और WPW सिंड्रोम. द P वेव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. P वेव के बाद में there is no Q wave and there is a sudden upsloping that is happening, and then the QRS and then the T wave. So you can see there is no Q wave. There is no Q wave in this ECG. There is wide QRS. Third thing that you can notice is कि ये जो QRS है, इसमें एक बहुत ही peculiar pattern है कि there is a sudden upsloping that is happening. और ये जो sudden upsloping होती है, this is referred as delta wave. So the third thing that you are going to notice is the delta wave. And fourth is obviously short PR interval. So these are the 4 changes that you are going to notice in the WPW syndrome. There is going to be absent Q, wide QRS, delta wave and short PR interval. एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, उन्होंने ये बोला था all of the following are the features of WPW syndrome ECG except, and the options were absent Q,
wide QRS, delta wave, prolonged PR interval. No, prolonged PR interval it is seen in heart block. यहाँ पे कौन सा PR interval होता है? Short PR interval, right? So this is called as the WPW syndrome. अब WPW syndrome में वो जो एक्सेसरी पाथवे था जो मैंने आपको ये ब्लू कलर में बताया, ये एक्सेसरी पाथवे लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के अगर बीच होता है तो उसको हम बोलते हैं टाइप ए WPW syndrome, which is more common. अगर ये एक्सेसरी पाथवे राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच होता है तो इसको हम बोलते हैं टाइप बी WPW syndrome. So we have two types of WPW syndrome, type A and type B. That depends कि where the accessory pathway is there. Between right atria right ventricle है तो type B है, left atria left ventricle के बीच में तो type A. More common type A होता है. इसको ठीक कैसे करेंगे? इसमें पेशेंट को प्रॉब्लम ये होती है कि इसको बीच बीच में पेशेंट को palpitation, dizziness, syncope episodes. These are the various problems that can be there with the WPW syndrome depending on the severity of the accessory pathway. बट द पॉइंट इज कि मान लीजिए आपने WPW सिंड्रोम का डायग्नोस कर लिया, अब इसको ठीक करना था. अब प्रॉब्लम ये है, ये सारी चीज इसलिए हुई क्योंकि ये एक्सेसरी पाथवे था. इसको ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये होगा कि हम इस एक्सेसरी पाथवे को कट कर दें. अगर हम इस एक्सेसरी पाथवे को कट कर दें तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिजियोलॉजिकल तरीके से AV नोड के थ्रू जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो इसको बर्न करना पड़ेगा हमें. दैट इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन दैट वी हैव टू डू. सो one treatment option that we are having is that we can go for a radio frequency ablation. We can go for radio frequency ablation. But radio frequency ablation के साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है कि अब यहाँ पे तो मैंने एक्सेसरी पाथवे को आपको इसको ब्लू कलर से ऐसे अलग हाईलाइट करके बता दिया, लेकिन जब आप ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हो तब ये कोई ऐसा ब्लू कलर का चमकता हुआ तो नहीं दिखता ना. आपको तो एब्लेटर लेना है और अंदाज से इसको कट करना है. अब ये एक्सेसरी कनेक्शन तो यार यहाँ पे भी हो सकता था, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच हो सकता है, यही यहाँ पे होता. तो जो डॉक्टर इस प्रोसीजर को करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेटर जो यूज करेगा, उसको क्या करना है कि ECG देख के ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो एक्सेसरी पाथवे उसकी प्रोबेबल लोकेशन किस जगह पे हो सकती है. वो छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस देखेंगे ECG में और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे. मान लीजिए उन्होंने डिसाइड किया कि एक्सेसरी पाथवे जो है वो इस जगह पे और उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेटर से इसको बर्न करना चालू किया. अब क्योंकि ये AV नोड के बहुत पास था, ऐसा नहीं है कि AV नोड आपको कोई हार्ट के अंदर दिख रहा है, राइट. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू डू द रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जब आप इसको कट कर रहे थे एक्सेसरी पाथवे को, कभी कभी गलती से AV नोड भी कट हो जाता है. और अगर AV नोड भी कट हो गया, आप देखो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में इस पेशेंट में दो एब्नॉर्मल दो कनेक्शन थे, एक एक्सेसरी पाथवे एक AV नोड, और हमने दोनों को कट कर दिया. और अगर हमने दोनों को कट कर दिया तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का कनेक्शन ही खत्म हो गया. मतलब इस पेशेंट को तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया, राइट, एंड ही मे रिक्वायर अ पेसमेकर. सो दैट इज अ प्रॉब्लम विद दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कि कभी कभी हम AV नोड को भी डैमेज कर देते हैं. सो लेट्स राइट डाउन द साइड इफेक्ट ऑफ दिस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, दैट देयर इज अ रिस्क ऑफ AV नोडल डैमेज. AV नोडल डैमेज हो सकता है. So what are the other drug options that we are having? There are two drugs such as procainamide and flecainide. प्रोकेनामाइड और फ्लेकेनाइड क्या करता है कि ये जो एक्सेसरी पाथवे होता है ना, इसको स्लो डाउन कर देता है. एक्सेसरी पाथवे जो था बंडल ऑफ कैंट, इसको स्लो कर देगा प्रोकेनामाइड फ्लेकेनाइड. तो अगर हमारे को रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन नहीं करना तो उस पाथवे को हम स्लो कर देते बाय गिविंग दीज ड्रग्स. So this is how we can manage the patient of WPW syndrome. WPW syndrome वाले को हम कभी भी excessive physical exertion करने नहीं देते, क्योंकि अगर उसकी हार्ट रेट बहुत बढ़ेगी तो ऐसे नोड बहुत जल्दी जल्दी फायर करेगा और बहुत जल्दी जल्दी इंपल्स जो है वो वेंट्रिकल में जाएंगे और उसकी वजह से वेंट्रिकल्स की स्पीड बढ़ जाएगी. वी डोंट वांट दिस टू हैपन. सो द सच एज द प्रोसीजर TMT, ट्रेडमिल टेस्ट, WPW syndrome में हम नहीं कराते. TMT in WPW syndrome is avoided. We don't want this to do in the patient. हम चाहते ही नहीं कि उसकी हार्ट रेट बढ़े. अगर हार्ट रेट बढ़ेगी तो उसके अंदर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. अब यहाँ पे हम एक और टर्म को समझ लेते हैं. दो टर्म होते हैं, एंटीड्रोमिक एंड ऑर्थोड्रोमिक. एंटीड्रोमिक और ऑर्थोड्रोमिक का मतलब क्या है कि AV नोड के थ्रू कंडक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको उसके अकॉर्डिंगली हमने दो टर्म डिवाइस किए. अब यहाँ पे देखिए आप, पहले समवेयर हियर इज द AV नोड. मान लेते हैं यहाँ पे हमारा AV नोड है, हियर इज द SA नोड. जैसे ही SA नोड ने फायर किया
इम्पल्स जो है एवी नोड में गया, एवी नोड से होता हुआ वेंट्रिकल्स में गया, और इस पेशेंट के अंदर एक एबनॉर्मल कनेक्शन था। अभी WPW सिंड्रोम को साइड में रख दो, अभी साइड में रख दो। व्हाट इज हैपनिंग इज, यहां से गया और यहाँ पे एक एक्सेसरी पाथवे था, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई, और ये वापस यहाँ से लूप के थ्रू अंदर घुस गई। अगर आप देखो यहाँ पे भी एक्सेसरी पाथवे था, और उसकी वजह से कंडक्शन का कुछ इस तरीके का लूप बन गया। अभी WPW सिंड्रोम की बात नहीं कर रहे, अभी आप एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे WPW पे। आप एक दूसरा सिस्टम देखो, ऐसे नोड ने फायर किया, इंपल्स एवी नोड पे आया, और ये इंपल्स जो था राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया में भी गया, और यहाँ पे एक एक्सेसरी पाथवे था, और इस एक्सेसरी पाथवे से ये तुरंत इधर चला गया